Hello everyone, welcome back to the White Collar Engineer. Today, in order to share his SAP interview experience, we have Anirudh with us. Hi Anirudh, welcome to the White Collar Engineer. Please introduce yourself in front of our audience. So, hi Saleh, thank you for the kind introduction. So, I've been born and brought up in Chandigarh, and as far as my CAT percentile goes, I have 93.4 as an overall percentile. My BRC percentile was I think 96. DILR 86 and maths 85. Okay. So all 80 plus. And 10th, I had 93, 9.8 CGPA rounds off to 93%. 12th, top 5 subjects 90, but top 6 subjects, as we have to include all 6 subjects of a mark sheet. So वो dropped down to 80. And then graduation में I had 70%. But कॉलेज को कौन बताया कि हमारे स्कूल कॉलेज में हाईएस्ट ही 75% थी. So it's also a drawback that I face. But in addition to that, in my CAT journey, what I've experienced is the fact that the extracurriculars that I've had have played a very good role in me getting calls from private colleges like SPJAN या Bitsom या कोई भी, and getting a more better interview experience or a guided interview experience in general with all colleges like IIM Sambalpur and the SAP interview. So I started working in 2017, the first year of my graduation. Started working with a startup in my city, Chandigarh. Worked there as a business development associate during graduation simultaneously, full time. And uske saath I developed a role for the startup, which helped me become the team leader of the company. From there, shifted to another startup, worked with them in the lockdown. उनके साथ help करके in the lockdown, I got promoted to the co-founder of the startup. So that really polishes my profile a lot, is what I've experienced with colleges. So something for everyone to look into. And with that, I've also co-founded 2 NGOs, once during my school and once during college. So another thing that really pumps it up, I guess, but it has never really been talked about. Startups, they have talked about during my interviews, but never with what I've done with NGOs or not. So something for everyone to ponder over, I guess. And I've also done a lot of internships with brands like Ola, Uber, Porter, but no one has ever asked me anything about it. I've mentioned it in all my maybe essays or CVs references that are added with your profile, but never talked about. And I've also played a lot of sports during school, nationals and district, but never talked about during my interviews. So with that in mind, I would like to shift focus to the SAP interview experience that I had. All right, Anirudh. So you have come a long way, like from being a business development associate till a co-founder position. So what are your best 3 learnings throughout your entire journey? So Saleh, the top 3 learnings that I have had during my journey, I would also try to relate this to CAT. Yeah. So the first was when I started working as a sales associate. The major learning was that the most important time I have in my sales pitch is the first 10 to 15 seconds. I learned this when I started doing a lot of cold calls. I would call them up and be like, कि सर हमारा ये business है वो है. उनको लगता था कोई customer care से बात कर रहे हैं. And I used to disconnect. So back in 2017, the idea of having a business proposal to you worked like a charm. So I called everyone. I would say that, sir, we have a business proposal for you, sir or ma'am, we have a business proposal for you. And I was in the gate to have that conversation with them. Right. So they were interested and could grasp their attention. And second, when I started working as a co-founder, the most important thing I learned from the entire experience was the importance of communication and emotional quotient during your stint as a co-founder or as working in a startup or in any company in general, just as a business person working in a business. So I learned this because we had a technical partner in our company. Okay. So they were looking after the technical aspect of the entirety of the product. It was a delivery platform, a food delivery platform, so could not work without an application. So we started working with them. They developed the product. It was up and going. But after like 3-4 months, they started the idea that everything is dependent on them, and they wanted to ask for more money or more equity in the company. So with that in mind, my co-founder and I got a little irritated with that fact. I stopped having a lot of communication with them. And उसके बाद हम लोग अपना काम करते थे, फोन पे ऑर्डर ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने टेक पीछे से बंद कर दिया है, काम चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. जो जेप्टो वालों ने करा था वो सब लोग कर चुके हैं, बट उनका चल गया, हमारा नहीं चल पाया. तो वो हमने करा, हमने 500-600 कॉल रोज लिया, सब कुछ करा हमने. बट उसके बाद हमारे टेक्निकल पार्टनर के साथ हम बस बैठ के एक बार वो बात नहीं कर पाए, क्योंकि वो भी इरिटेटेड थे, हम भी इरिटेटेड थे, किसी ने अच्छे से बात नहीं करी और सारा पैसा वैसा इधर उधर हो गया, एंड वी हैड टू क्लोज शॉप. So that was something that I got to reflect upon after like 1 or 2 years of closing it, and realized that maybe things would have been very different if this lack of communication did not exist. And third, being something related to my CAT journey, was a lot of these things play a lot in your profile. आपने co-founder करा है, startup वगैरह करा है, सब कुछ करा है, वो करा है, बट उनको फिर भी आपसे इंटरव्यू उसी तरह से चाहिए जिस तरह से उनको चाहिए. Correct. कि आप why MBA क्यों करना चाहते हो, ये नहीं बोल सकते कि पैसे ही चाहिए या कुछ है, चाहे उसको आप ट्विस्ट करके भी नहीं बोल सकते हो. आपको बस ये दिखाना पड़ेगा कि वो कॉलेज के लिए वो why MBA क्यों सूट करता है. कि आपको चाहे कंसल्टिंग में जाना हो कुछ भी हो, बट why MBA में मेंशन कि मुझे मार्केटिंग करनी है. तो इसमें
इवन दो यू आर वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, आपने कंपनियां चलाई हैं या आप अपनी जॉब में 3-4 लोग की टीम लीड करते हो, कुछ भी करते हो, आप फंबल कर जाओगे क्योंकि यू आर ट्राइंग टू प्रिटेंड दैट समथिंग दैट यू आर नॉट. एंड Exactly. अनफॉर्चुनेटली ये करना पड़ता है, इवन दो यू आर नॉट फॉर इट, बट आपको ये अनफॉर्चुनेटली करना पड़ेगा True. क्योंकि आपका कॉलेज में सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है. True. Until unless you are a non-engineering girl, क्योंकि आपको बहुत सारे पॉइंटर्स मिल जाते हैं उसकी वजह से, नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट एनीवन, Exactly. बट वो जो गैप है आपको कवर करने के लिए यू विल हैव टू प्रिटेंड एंड मे बी रिहर्सल. So something that has been a long learning in my CAT journey. Okay, Anirudh. So let's talk about the SAP process. What is SAP all about, and which all IIMs do participate in SAP, and what is the cutoff basically? Right. So I gave SAP twice. Last year, SAP 2024, SAP had 3 colleges: Bodh Gaya, Jammu, and Sirmaur. Sirmaur में last year what they did was उन्होंने cut off रखा था 90 percentile, but I did not get a call by Sirmaur for the interview process. Inquired with them, turned out कि 90 percentile above only girls can apply under SAP. Okay. So this is also consideration or condition that they can keep. But turns out this year Sirmaur was not part of the SAP process. SAP 2025 was only Bodh Gaya and Jammu. And I think there is this upcoming IIM which will be maybe Kanpur in Assam, which will I think be functional from next year. So I think that will also be added to the SAP process from next year. And SAP के पूरे process में we get an interview call to we get something similar to CAP या बाकी IIMs का. हमें एक offer आता है कि you have been shortlisted for the interview process for SAP. It is for these 2 colleges. इसके अंदर ये courses हैं. आपके पास ये link है. Go to this link, generate your ID. आप आईडी बनाइए एंड उसके बाद यू स्टार्ट फिलिंग अप द फॉर्म, जो एसेज वगैरह के बारे में आपकी डिटेल्स होंगी. जैसा आपने कैट के फॉर्म पे भरते हुए डिटेल्स डाली होंगी, बेसिक वो डिटेल्स एंड सम एसेज दैट वुड हेल्प देम अंडरस्टैंड मोर टुवर्ड्स व्हाट यू वांट फ्रॉम योर कॉलेज एक्सपीरियंस Right. and things like that. So that is the starting of the process. After you complete that, there's that obviously there is a deadline. Once you complete that, you get a shortlisted date and time कि आपको किस में से choose करना है. You can choose your options. I selected Delhi because I am from Chandigarh. Selected a time slot that would suit my day-to-day travel. Okay, I can travel in one day, come back in one day, which is for anyone looking to travel from within like 5 to 6 hours to Delhi and come back after the interview experience. It is very much possible because we had Lemon Tree Hotel, Red Fox Hotel maybe in Delhi this year, and it also has a very nice changing room in majority of their washrooms. So it's very much possible to get an early morning train or a bus, reach Delhi, reach the hotel, change there and go for an interview process. So I reached Delhi around 10:30. I reached the hotel around 12:15. There was just some lag in the early hours. Okay. My interview slot was booked for 1:30. I got changed and dressed up, joined the interview batch at 1 p.m. And the SAP process this year included VAT and a PI. There was no VAT last year. It was only a PI. The last year PI was mainly centered around academics and what you have done. And I asked the faculty that was there in the PI a few questions, but they weren't able to answer it. They were like, college wale log aapko batayenge. So it seemed like the interview process was washed out last year. But considering it was offline this year, so it seemed like we were surrounded by a lot of IIM Bodh Gaya, Jammu ka faculty itself. We could tell by talking to them. So once you reach the hotel and once you get to the maybe the 7th floor for the interview process, you see there is a merit list just like आपका CAT के एग्जाम सेंटर के बाहर होता है. हाँ. कि ये आपका पैनल नंबर है या आपका रूम नंबर होगा, आपका रोल नंबर होगा, सब कुछ होगा. आपको वहाँ पे लिस्ट दी जाएगी. पैनल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पैनल्स होते हैं हर स्लॉट में. जो सुबह वाला स्लॉट होता है, दे जनरली गेट फ्री अराउंड 12:31 एंड आपका 1:30 तक स्टार्ट होता है सेकंड स्लॉट एंड वही 4 घंटे लगते हैं. 5 साढ़े 5 तक यू गेट फ्री. Okay. तो उसके बाद अपना पैनल नंबर देखने के बाद आई गॉट लिटिल पैनिकी बिकॉज मेरा पैनल नंबर था 8. तो मुझे लगा कि पहले 1 से 8 तक का जाएगा, फिर जाके टाइम लगेगा, ये सब होगा. बट सब पैनल साइमल्टेनियसली चलते हैं बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ इंटरव्यू रूम्स. Right. पैनल 1 का इंटरव्यू रूम अपना होगा, पैनल 8 का अपना होगा एंड हर पैनल में 10 बच्चे होंगे. Okay. तो आपको टाइम उतना ही लगना है जितना पैनल 1 के 10th बच्चे को लगेगा और पैनल 8 के 10th बच्चे को लगेगा. Right. सो उसके बाद आई वेंट अहेड इन द पूरा ऑडिटोरियम था वहां पे जहाँ पे पैनल में एकदम रोज में एवरीवन वाज सिटिंग. तो आपको आपके पैनल के और आपके नंबर के हिसाब से आपको बिठाया जाएगा एंड देन यू हैव टू वेट. सामने डेस्क लगे होंगे एक लाइन में, उनके आगे हर लाइन में पैनल्स बने होंगे. यू विल सिट एंड आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद बैट होगा एंड उसके बाद पीआई होगा. But we were told that this sequence can change anytime. Okay. I reached around 1:30, but 1:30 वाले बच्चे, a lot of them reached at 12:30, 12:40. They got their document verification done sooner. मेरा 1:30 पहुंचने के बाद document verification 2:33 के आसपास हुआ था, क्योंकि 1:30 के बाद when it was around 2, they decided कि हम लोग document verification अभी रोक रहे हैं, हम लोग VAT पहले करेंगे. अच्छा. तो they do it suddenly. So try and stay in the auditorium, don't go out, क्योंकि वो VAT कभी भी start कर सकते हैं, you might end up missing out. Right. तो हमारा VAT का topic था somewhere around semiconductors are helpful part for India's manufacturing sector. Okay. Something like that.
So it was a 20 minutes, we got 20 minutes to write down our VAT topic and उसके बारे में हमें जो लिखना है. So I felt I wrote pretty well because I was just a little aware of semiconductors में क्या क्या है, कुछ है, just out of luck. आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आपका टॉपिक हो और आपको कुछ ना पता हो. मे बी ट्राई एंड जस्ट राइट एनीथिंग दैट इज रिलेटेड एंड उसमें कुछ करंट कुछ घुसा दो जो रियल वर्ल्ड एग्जांपल हो एंड यू विल बी सॉर्टेड. नॉट अ प्रॉब्लम इन दैट. A lot of people in my panel and in the entire room did not know the topic well, but they were also a little confident about what they have written. So it'll end up well. Not to worry. After the VAT, we were being called one by one for the verification, document verification process. And जिनका document verification and VAT हो गया था, they started leaving for the PI. तो वो एक different building में था altogether PI. वहाँ से आपको होटल से नीचे उतर के साथ में बिल्डिंग था, वहाँ पे they would send you one by one. And वहाँ पे जैसे होटल के जो रूम्स होते हैं, जैसे नहीं एग्जैक्टली जो होटल के रूम्स होते हैं, उनका एक कॉरिडोर था. सो दे बुक लाइक द एंटायर कॉरिडोर. उसमें जितने भी रूम्स थे सब में वन बाय वन पीआई चल रहे थे. सो दैट इज हाउ दे वर एबल टू मेंटेन द टाइमलाइन की पैनल 1 जहां खत्म हो रहा है, पैनल 10 पैनल 8 भी उतने ही टाइम पे खत्म होगा. तो यहाँ से जब एवरीवन, तो उसमें आप ये कर सकते हो. इफ यू हैव टू लीव अर्ली इन द इवनिंग, यू गो एंड टेल देम कि आई वांट टू लीव अर्ली, आप प्लीज मेरा वेरिफिकेशन जल्दी करवा दो सो दैट आई कैन लीव फॉर दी पीआई. सो आई वेंट देयर. मुझे था कि मेरी शाम की 6:30-7 की ट्रेन है, जो कि नहीं थी, बट कि मेरी शाम को 7 बजे की ट्रेन है, तो आई विल बी लाइक लिटिल स्मार्ट एंड उन्हें बोलूंगा कि आप मुझे प्लीज जल्दी भेज दो मेरा वेरिफिकेशन करा. बट मैंने उनको ये बताया, 3 घंटे हो गए उन्होंने मेरे को नहीं बुलाया. तो उसके बाद मेरे को उनको फिर से जाके बोलना पड़ा कि आप प्लीज मेरा वेरिफिकेशन जल्दी करा दो, ये ट्रेन है वगैरह वगैरह. कहता हमारे पास फिर से आ जाते हैं, हम फिर से करा देते. तो आई सैट फॉर द वेरिफिकेशन प्रोसेस एंड इट टर्न्स आउट जो वेरिफिकेशन प्रोसेस द पीपल दैट आर कंडक्टिंग इट वो IIM बोधगया या जम्मू की फैकल्टी के ही लोग हैं. तो जनरली दे आर IIM बोधगया, क्योंकि IIM बोधगया जनरली इसको सैप को कंडक्ट करता है, क्योंकि जम्मू इज कंपैरेटिवली न्यूअर एंड बोधगया ने इस साल कैप किया था, तो मे बी इट वाज देयर रिस्पांसिबिलिटी, आई डोंट नो. तो उसमें यू टॉक टू देम, डिस्कवर थोड़ा कॉलेज के बारे में बात करते करते, इट्स फाइन. जस्ट शोज अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट ऑन योर पार्ट, नॉट समथिंग नेसेसरी टू बी डन. वो आपका वेरिफिकेशन में वो ये करते हैं कि आपका 10th के जो भी आपकी मार्कशीट पे नंबर लिखे हैं उनको टैली करेंगे, चेक करेंगे जो अपने परसेंटेज अपने सैप फॉर्म में लिखे वो करेक्ट है या नहीं, मैच करता है या नहीं. 12th के नंबर्स को टैली करेंगे और क्यों मैच करता है नहीं. तो मे बी मेरे पार्ट पे एक अनइंटेंशनल या इंटेंशनल मिस्टेक थी कि मेरे अनइंटेंशनली थी, वैसे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मेरा जो 12th के मार्क्स थे वो ऑल 6 सब्जेक्ट से मिला के बनता था 80.3%. तो मैंने वहां पे लिखा हुआ था 81.6. वो ही वाज लाइक आपने ऐसा क्यों किया, ये किया वो किया. मैंने कहा सर इससे मेरे नंबरों में फर्क भी नहीं पड़ता, गलती से हो गया होगा. सो दे वर आल्सो वेरी ओपन टू डिस्कशन एंड दिस वांट टू सी हाउ यू हैंडल द सिचुएशन. ढंग से बात करोगे, मतलब मैं एक टैंजेंट पे भी निकल सकता है कि सर आप मेरे को क्या अक्यूज कर रहे हो यहाँ पे, आप ये क्या बात कर रहे हो. तो would have really undermined my PI experience. उसके बाद से शायद वो मुझे भेजते ही ना. तो मैंने बस उनको बताया कि ये इशू था उसमें एंड 12th के मार्क्स देखे, फिर ग्रेजुएशन की डिग्री का देखा एंड उसके बाद मेरी वर्कएक्स की बारी है. तो वर्कएक्स का मुझे उससे एक दिन पहले पता चला था कि हमें वर्कएक्स के डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने थे. तो वो मेरे पास सारे अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि पहली कंपनी, दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी थी जिनकी PI स्लिप सबकी पे स्लिप सबकी अवेलेबल नहीं थी. सो आई वेंट देयर विद द डॉक्यूमेंट्स दैट आई हैड एंड ही आस्क्ड मी कि ये सब आपके पास है, होगा या नहीं होगा, कैसा है, कुछ गलत तो नहीं है, ये नहीं है. मैंने उन्हें बताया कि नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये स्टेटमेंट यहाँ है, बैंक अकाउंट दूसरा था, उससे मैं ओवरनाइट निकाल नहीं पाया, लेट हो गया है, व्हाटएवर. ही अंडरस्टूड एंड ही टोल्ड मी कि आप जब एडमिशन ऑफर आएगा तब आप इसको ले आना अपने साथ और ये प्रेजेंट कर देना, अदरवाइज विल रिसेंड द ऑफर. ओके कूल. इससे पहले कैप्स, मेरी एक फ्रेंड थी, उसने कैप का इंटरव्यू दिया था. सो शी टोल्ड मी कि दे गॉट लाइक 3 days टू अपलोड इट ऑन द डैशबोर्ड. ये लोग उनको एक लिंक दे देते थे तो ऐसा होगा. तो आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट, बट दैट डिड नॉट हैपन इन सैप. सो इट कैन गो आइदर वे मे बी. एंड जस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर एवरीवन, कैप इंटरव्यू प्रोसेस में देयर वाज अनदर फ्रेंड जिसने अपना वर्कएक्स दिखाया था 1.5 year. इट डज नॉट मैटर अलॉट, क्योंकि 1.5 15-18 months का इतने ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, बट उसके 1.5 year में से 1 साल का जो वर्कएक्स था वो कैश में उसको सैलरी मिली थी. अच्छा. तो कैप की और सैप की टर्म्स एंड कंडीशंस में बोल्डली लिखा गया है कि अगर कैश में या यूपीआई के थ्रू या ऐसे मोड से अगर आपको सैलरी आई हुई है तो वी वोंट कंसिडर दैट. तो उनका वो चीज हाईलाइट हो गया. और भी बहुत लोग होंगे जिनका ऐसा नहीं हुआ होगा, बट उनसे जब उनके वर्कएक्स के बारे में कैप के प्रोसेस में पूछा जा रहा था तो मे बी शी वाज़न्ट एबल टू आंसर इट कि ऐसा है या नहीं है, या फिर शी जस्ट सेड कि हाँ ये क्या सैलरी थी. तो उन्होंने उसको हाईलाइट करके उसका वो वर्कएक्स के पॉइंट्स हटा दिए उनके प्रोसेस से. तो दैट वुड हैव आल्सो हैपेंड विद मी अगर मेरा सैप में ऐसा होता. ऐसा नहीं होगा कि आपने सैप में कुछ फेक करा है तो आपको उसी टाइम घर भेज देंगे अगर वो कंफर्म कर लेते हैं. वो ये देखेंगे कि अगर आपके 12th के मार्क्स 95 की जगह 85 थे तो वहीं पे वो अपडेट कर देंगे कि ये डेटा 95 वाले पॉइंट्स नहीं मिलने चाहिए, 85 वाले मिलने चाहिए.
एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा वर्क के साथ जितने भी मंथ्स का वैलिड होगा वो अकॉर्डिंगली उसको अपडेट करके उनके पास वहां पे डैशबोर्ड अपना होता है, वो वहां पे चेक करके आपको आगे पीआई प्रोसेस के लिए भेज देंगे. सो दैट इज मोर अबाउट द वेरिफिकेशन एंड हाउ इट गोज. उसके बाद दे सेंड यू फॉर द पीआई एंड इस सारे प्रोसेस में 3.5-4 घंटे हो गए थे. आपको एक 5 स्टार होटल में कोई पानी के लिए भी नहीं पूछता और कोई चाय के लिए भी नहीं पूछता. Exactly. तो अपना पानी भी ले लेना, और वहां पे बिस्लेरी की छोटी मोटी बोतलें होती हैं, वो भी दे ऑल्सो रन आउट ऑफ दोस. होपफुली अपना पानी ले लेना, कुछ खाने के लिए ले जाना, बिकॉज 4-5 घंटे लग जाते हैं. और मेरी ऐसी किस्मत है, मैं स्मार्ट बन रहा था शुरू में कि सर मेरे को जल्दी भेज दो, ये कर दो. इवन दो मैंने ट्रेन नहीं बुक कराई थी शाम को, मुझे पूरे दिन का सारे फाइनल्स में से मिला के सबसे लास्ट इंटरव्यू मेरा था. उसके बाद तो कुछ कर नहीं सकते. मतलब इवन सबसे लास्ट होने के बाद भी आई वेंट इन द रूम अराउंड 5:15 इन पीआई मेरा स्टार्ट हुआ था. 5:30 5:35 मैक्सिमम आई वाज फ्री. तो इस सब के उसमें चलते हुए, तो आफ्टर बीइंग डन फॉर विद द वेरिफिकेशन आई वेंट फॉर द पीआई. एंड उन्होंने जो पीआई के लिए भेजा तो वहां पे पता चला इतना एक पतला सा कॉरिडोर वाला कमरा होता है, जैसे स्कूल का कॉरिडोर नहीं होता, उसका हाफ होगा. हम लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, किसी के पास में खड़े होने की जगह नहीं है, कुछ नहीं है. सारे कमरे जो होटल के कमरे हैं साथ लगे हुए हैं. यू हैव टू ऑब्वियसली मेंटेन योर अपेरेंट पिन ड्रॉप साइलेंस, क्योंकि सामने ही इंटरव्यू आपका कंडक्ट हो रहा है एंड 10 लोग एक जगह खड़े, शोर कैसे नहीं होगा. तो वो सब चल रहा था. और टू डिस्कवर वहां पे कि मुझसे पहले 6 लोग थे जिन्होंने मेरे पैनल में इंटरव्यू देना था. बाकियों में 3 बच्चे थे, 4 बच्चे थे, या क्या था, क्योंकि मेरे पैनल वाले थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा ले रहे थे. अच्छा. तो उसमें क्या हुआ फिर वहां पे when I started the interview, when I went in the corridor, so sat there, took my time, discussed with the other people कि क्या चल रहा है इंटरव्यू में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. So सबने बताया कि it ranges maximum 10 to 15 minutes. 15 minutes वाले थे जो मेरे पैनल वाले बच्चे थे, generally that one off panel in all the panels जो ज्यादा टाइम ले रहे हैं. Otherwise सबका 10 मिनट के अंदर इंटरव्यू हो गया, everyone got free, and इंटरव्यू देते ही everyone was leaving until unless anyone made a friend या whatever. तो इवेंचुअली चलते व्हेन माय इंटरव्यू का टर्म केम, तो उनसे पहले 2-3 लोग थे, वो लोग भी उनसे पहले आने वाले बच्चे बता रहे थे कि क्या पूछ रहे हैं क्या नहीं, वो फिर आगे बता रहे थे. तो हमारा इंटरव्यू पैनल से जस्ट बी अ लिटिल आई गेस एक्टिव इस बात पे. यू गेट टू अंडरस्टैंड अ फ्यू क्वेश्चंस जो वो तुमसे पूछेंगे. जैसे इफ आई वाज रैंक्ड 10th इंटरव्यू ऑर्डर, तो जो 6th रैंक पे गया था उसने 7th और 8th को बताया कि अंदर ना इनकम टैक्स के बारे में पूछ रहे हैं एकदम से, क्योंकि अभी जो हमारी इनकम टैक्स चेंज हुई थी, इट सॉर्ट ऑफ बिकेम अ डोरमेंट न्यूज आफ्टर 1 month. तो सबको स्लैब्स आइडिया नहीं था, तो 6th वाले को पूछा, वो बता नहीं पाया. तो इससे 7th और 8th वाले को भी बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि वो 2 मिनट बाद बेचारा अंदर गया, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड इट अगेन. बट 8th वाले को फायदा हुआ, 9th वाले को फायदा हुआ, और फिर 10th वाला मुझे भी होता अगर वो मुझसे पूछते. उन्होंने 8th वाले को पूछा, 9th वाले को पूछा, बट मुझसे नहीं पूछा. तो ये बात चल रही थी एंड एवरीवन वाज वेरी गिगली अपना कॉरिडोर में. वहां पे मजाक से ही चल रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. इतना मजा तो नहीं आया था कि बहुत सीरियस इंटरव्यू प्रोसेस है, सीरियस कॉलेज है, ये है वो है. थोड़े टाइम बाद वहां पे कॉरिडोर में वेट करते करते जो वैट हुआ था और जो कंडक्टिंग बॉडी थी वहां पे और जो लोग थे, वो अपने हाथ में इतने सारे जो कॉलेज के एग्जाम की शीट्स नहीं होती, उस तरह से शीट्स पकड़ के लेते और उनको वहां पे चेक कर रहे थे, देख रहे थे किस किस का हो गया, क्या हो गया, वो हो गया. टर्न्स आउट वो तुम्हारी वैट की शीट्स थी. तो थोड़ा सा बंदे को अपना इंटरव्यू से पहले जस्ट लगता है कि यार मेरी वैट की शीट तो अंदर भी नहीं है. मैं यहाँ सोच रहा था कि वैट मेरा भी होगा, मेरे वैट के बारे में डिस्कस करेंगे, वैट का ये होगा वो होगा. तो ये आपकी किस्मत है. उस दिन वो अगर वैट के क्वेश्चंस उससे क्वेश्चंस से पूछने, मतलब वैट से कुछ पूछने का चांसेस भी कम लग रहा था उस टाइम पे. मतलब हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो वैट वाली शीट ही आपके अंदर नहीं है, उन्हें पता ही नहीं आपने क्या लिखा. बिल्कुल. और उनके हाथ में जो बंडल था वो किसी पैनल वाले रूम का बंडल था, किसी का नहीं था. किसी पैनल के रूम में वो पूछ भी रहे थे, किसी में नहीं पूछ रहे. तो ये सब चल रहा. तो हमारे पैनल में थोड़ा और किस्मत खराब थी कि वो 10-15 मिनट कुछ तक जा रहा था. तो मुझसे जस्ट पहले वाले बच्चे का हुआ, उसके बाद उन्होंने 2-3 मिनट वेट करा एंड देन माय पीआई बिगैन. तो पीआई बिगैन विद द आइडिया, दे वर वेरी चीयरफुल. शायद लास्ट था या क्या था मे बी, बट दे वर चीयरफुल कि यार हमारे बारे में बाहर बात क्या कर रहे हैं आप, प्लीज ये बताओ. अच्छा. तो अब आप उनको सच तो नहीं बता सकते हो कि सर आपके बारे में बहुत बुरा भला बोला जा रहा है. अब हमारे इंटरव्यू में क्या था कि हमारे इंटरव्यू में 2 पैनलिस्ट थे. एक पैनलिस्ट वाज सपोजिटली वेरी काम एंड आस्किंग वेरी नॉर्मल क्वेश्चंस, एंड वन पैनलिस्ट वाज बीइंग टॉक्ड अबाउट फॉर आस्किंग रैंडम क्वेश्चंस कि वो तुमसे कुछ भी पूछ रहे हैं. कि तुम केमिस्ट्री वाला जो सीन है वही हो गया. मे बी वो गुड कॉप बैड कॉप कर रहे थे, या मे बी वो अलग ही कुछ कर रहे थे. क्योंकि उनका क्योंकि किसी ने ये भी नहीं कहा कि गुड कॉप बैड कॉप था. किसी ने ये कहा कि जो इरिटेटिंग पैनलिस्ट है वो कुछ भी पूछ रहा है, और जो नॉर्मल पैनलिस्ट है वो उससे अलग कुछ भी पूछता है. गुड कॉप बैड कॉप में एटलीस्ट दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, बट वो तुमसे बात कर रहे हैं. तो उसके बाद आस्क मी कि हमारे बारे में क्या बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे आपको ये मेंटेन करना है कि आप भी एक नॉर्मल इंसान हो, नॉर्मल लोगों से बात कर रहे हो, बी अ लिटिल फनी या कुछ भी, आराम से बात करो. आपको ऐसे स्टकअप नहीं रहना सर कि नहीं आपके बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, मेरा भाई एमबीए से स्टार्ट करते हैं. Not the sort of interview they want to do. So your interview can go off to any tangent at any time. फिर उनसे बात करते करते इसी बारे में 2 से 3 मिनट तो इसी बारे में बात हुई कि सर आप लोग इनकम टैक्स स्लैब वगैरह पूछ रहे हो, ये सब पूछ रहे हो, ये सब कह रहे हैं और कोई कुछ नहीं कह रहा है.
So you have to be a little mindful also कि आप कितना बताओ, कितना ना बताओ, Yeah. etc. Goes without saying, but just saying it again for someone to be cautious about. And उसके बाद the interview began with the one that was supposedly a little irritating or asking anything. So he started with the idea of asking me from my after my introduction. मैंने introduction start किया. Maybe they liked it in the midst of it, interrupted me and started talking to me about my legal background. I am a lawyer. I did my graduation in BCom LLB honors. This is something I omit from my introductions because not my strongest suit and not my strongest area to talk about. But they focus a lot on academics. So I prepared a subject and I had the idea कि अगर law के बारे में बात होगी तो I'll try and navigate it to that one subject. Right. So they were talking about it and उसके बाद उन्होंने लॉ के कुछ क्वेश्चंस पूछा कि इस वाली लॉ में क्या होता है. आई विल शेयर यू माय ट्रांसक्रिप्ट. आप अगर हो सके तो इंटरव्यू के साथ ट्रांसक्रिप्ट लगा देना. आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट लॉ कौन सा पूछा था. तो बट उन्होंने मुझसे पहले फॉर एग्जांपल उन्होंने मुझसे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ पूछा. मुझे कुछ थोड़ा सा आता था तो मैंने थोड़ा सा बताया एंड देन आई टोल्ड देम कि नहीं मुझे नहीं आता बट मुझे कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बारे में आता है सर, इफ वी कैन टॉक अबाउट इट. फिर उन्होंने मुझसे ऑपरेशन रिसर्च करके हमारे उसमें एक सब्जेक्ट होता था बीकॉम के पार्ट में, उन्होंने मुझसे उसके बारे में पूछा. मैंने कहा सर देखो पढ़ा था बट आई डोंट रिकॉल इट राइट नाउ या मुझे नहीं याद बट मुझे कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बारे में आता है. तो इफ वी कैन डिस्कस ऑन दैट. You are trying to keep the interview towards the strength of yours. कि मतलब सर ये मैं प्रिपेयर करके आया हूँ, आप मुझसे ये पूछ लो यहाँ से जॉन लो की लीगल नॉलेज है या नहीं. Exactly. तो उसके बाद फिर ऑपरेशन रिसर्च हुआ विच आई हैड नेवर हर्ड ऑफ आफ्टर माई सेकंड ईयर इन कॉलेज. सो वहां से मुझे समझ आई कि इन्होंने मेरा शायद सिलेबस खोला हुआ है मेरे कॉलेज से. उसमें उन लोगों ने पूरा करिकुलम या पूरा सिलेबस खोला हुआ था मेरा ईयर बाय ईयर एंड दे वर आस्किंग क्वेश्चंस वहां से. फिर उन्होंने मुझसे थोड़ा आईपीआर पूछा. मैंने फिर से कहा इतना मुझे नहीं आता है, अब मुझसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बारे में प्लीज बात करो. तो उन्होंने मुझसे ऐसी 3 लॉज के बारे में फिर से और पूछा. किसी के बारे में थोड़ा सा आता था, किसी के बारे में नहीं आता था. बट इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट पोलाइटली बोल दो नहीं आता, चाहे आपने ऐसा 4 बार बोल दिया. क्योंकि आप उनको बता रहे हो कि मुझे ये आता है, आप ये पूछ लो. अगर वो नहीं पूछ रहे हैं अप टू देम, जस्ट गिव अ लिटिल स्माइल कि नहीं आता एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक रादर देन स्पिनिंग अराउंड द टॉपिक. क्योंकि उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, इट वाज अबाउट, हाँ उन्होंने पूछा था पैटेंट्स एंड डिजाइन्स का प्रोसेस क्या होता है, समथिंग लाइक दैट, कि डिजाइन्स में पेटेंट्स मिलते हैं, ऐसा कुछ पूछा उन्होंने. तो मैंने पहले तो उनसे एक बार अपना क्वेश्चन वगैरह कंफर्म करा क्योंकि उनको तो कोई आइडिया ही नहीं था. तो फिर उनसे बात करी. फिर आई ट्राई टू टेक अ गेस. इफ यू नो समथिंग आस्क देम कि सर आई नो some part of it, if you would like I can, if you would allow, if you would like I can take a guess about it. So I took a guess. उन्होंने कहा कि are you sure? I was like नहीं सर. और वो कहते कि अगर आपको किसी को for sure बताना हो इसके बारे में तो आप क्या बोलोगे. मैंने कहा सर मैं यही बोलूंगा कि मुझे नहीं पता इस बारे में. तो he was like अच्छा ठीक है क्योंकि आपने जो बोला वो गलत था. So I was like हाँ गुड. नो वन शुड बी अफ्रेड ऑफ सेइंग आई डोंट नो यार. मतलब काफी लोगों में वो मिसकंसेप्शन है कि अगर मैं आई डोंट नो बोल देता हूँ तो माइट क्रिएट अ नेगेटिव इंप्रेशन. बट इंस्टेड ऑफ ब्लैबरिंग एनीथिंग, आई मीन कुछ भी मतलब अनटिशंट बोलने से अच्छा है एडमिट कर दो ऑनेस्ट. हाँ क्योंकि आपका जो इंप्रेशन फिर जाएगा ना कि आप तो किसी भी सिचुएशन में कुछ भी कर लोगे या क्या भी कर लोगे एंड दे रिलेट टू योर एक्सपीरियंस इन कॉलेज. ये बच्चा कॉलेज में आके कभी भी कुछ भी बोल रहा है, वहां पे कंपनी को हायरिंग के लिए बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उनको झूठ बोल रहा है कि सर हमारे यहाँ तो बच्चों के 10 सीजीपीए आ रहा है, 9.8 आ रहा है. Doesn't make they can interpret it. हाँ, they can interpret it in any manner that they want. Just show them how you are honestly. If it's good for them, they'll take you. If it's not, they won't. Just have those basic parameters around it. तो विद दैट वहां से उनका वो एकेडमिक्स वाला जब पार्ट खत्म हुआ, सो ही आस्क्ड द अदर पैनलिस्ट टू टेक ओवर. हाँ जो सेकंड पैनलिस्ट थे उनके साथ फर्स्ट वाले पैनलिस्ट के साथ एकेडमिक्स डिस्कस होने के बाद हम सेकंड पैनलिस्ट पे जब आए तो उन्होंने थोड़ा बीट अराउंड द बुश करा, इधर उधर सवाल पूछे. जैसे मैंने पहले बताया इट सीम लाइक ही वांटेड कि ही एक्सप्रेस्ड कि मैं तो ज्वाइन ही कर रहा हूँ वगैरह वगैरह वगैरह. तो उनके उस इंटरव्यू के बाद बट जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि इट्स नॉट श्योर कि तुम कर रहे हो या कुछ भी है. पीआई में तुम्हारा कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है बट आई हर्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल कि उनको पीआई में दे हैव द बेस्ट एक्सपीरियंस इन देयर पीआईस एंड उनकी परसेंटाइल भी अच्छी होगी बट उनका वेट लिस्ट जाके पता नहीं कहाँ हजारों में आता है. Exactly. तो दैट इज समथिंग टू कीप इन माइंड कि आपका पीआई अगर अच्छा भी हुआ है सो स्टिल स्टे अ बिट ऑन टोज कि आपने जाना है नहीं जाना वगैरह. एंड वन मेजर थिंग, ये मैंने बाकी लोगों से भी सुना था व्हेन दे वर गिविंग देयर इंटरव्यूज, कि आपको वो लोग थोड़ा पुश करते हैं कि आपका जो हमारा जो IIM बोधगया जम्मू हमारे जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं देन कोर MBA आप वो ज्वाइन कर लो. मैंने पिछले साल जब से आपका इंटरव्यू दिया था आई एम नॉट श्योर कि कोर MBA उसमें था या नहीं था बट जितने भी प्रोग्राम्स थे मेरे साथ आई वाज एलिजिबल फॉर ऑल ऑफ देम. एंड मैंने कैट का एग्जाम दिया था ऑन अ व्हिम कि जिंदगी में वापस तो कभी नहीं जाना है सैप के लिए, हम बड़े कॉलेज में जाएंगे ABC ये वो कोझिकोड के नीचे तो बात नहीं करेंगे. बट उन्होंने मुझसे इस साल भी बात नहीं करी. तो सो अगेन सैप प्रोसेस में तो थे बट आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि शायद इस साल भी ना जाए या वगैरह वगैरह, डोंट नो. बट दैट इज व्हाट गिव मी दैट थोड़ा नॉनचलेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंटरव्यू प्रोसेस.
थोड़ा नॉट वो कि आई वाज डिसरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोसेस, क्योंकि आपका वरना आइडिया ऑफ द प्रोसेस एकदम चेंज हो जाता है। ट्राई स्टेइंग अ लिटिल नॉनचलांट अबाउट इट कि हाँ इंटरव्यू ही है, देके आते हैं जो भी करते हैं, यू वोंट गो रॉन्ग, फिर यू रियली वोंट गो रॉन्ग। माय बेस्ट एडवाइस फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस। एंड वो जब इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो जब वो नच करते हैं तुम्हें कि आपको कोर में आना है या आपको बाकी सब्जेक्ट्स में आना है, तो अगर आपके साथ बाकी सब्जेक्ट कोई रेजोनेट करता है और आपको एक्चुअली लगता है कि आपको वो सब्जेक्ट अच्छा लगेगा या आपने उसका करिकुलम स्टडी करा और आप उसके बारे में कुछ बोल सकते हो, तो आप बोलो। अदरवाइज आप बोलो कि मेरे को कोर में ही जाना है क्योंकि मेरे को ये सीखना है और ये करना है। तो मैं बोध गया जम्मू के बारे में पढ़ के गया था, even though I was least interested in joining the college, if I was still to give a proper interview and actually churn out a good experience from the 15 minutes that I was giving, तो उसमें जानने के लिए मैंने बोध गया के बारे में 15-20 मिनट पढ़ा, मैंने जम्मू के बारे में 15-20 मिनट पढ़ा कि इनके करिकुलम में क्या होता है, इनके यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स कौन से हैं, जैसे मैं अगर एंटरप्रेन्योरशिप सेल के बारे में पूछना चाह रहा हूँ तो वो है भी या नहीं, उसका नाम क्या है, स्पोर्ट्स क्लब क्या है, कम्युनिटीज क्या क्या करती हैं, ये क्या है वो क्या है। 10-15 मिनट लगाने की जरूरत है, आप सब समझ जाते हो एक लुक में कि क्या है। तो बोध गया का एक यूएसपी सा था कि उनका फर्स्ट ईयर में वो बड़े फाउंडेशनल कोर्सेज भी कराते हैं तुम्हें, प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसे होते हैं वगैरह वगैरह विद योर कोर सब्जेक्ट्स। So this was, in my opinion, a very good pointer also. Exactly. It all depends on college की standing क्या है वगैरह, that's different. But maybe इनका curriculum is very good. And second year में they nudge you towards your specialization या towards कोर सब्जेक्ट्स जहाँ पे आप काम कर सकते हो और जान सकते हो और स्पेशलाइजेशन अपनी डेवलप कर सकते हो। तो ये चीज मैंने उनको बताई कि सर ये मैंने देखा कि ये कोर प्रोग्राम में आपका प्रोग्राम ऐसा है, इसलिए मेरे को कोर में जाना है, ये मेरे को आपके बाकी प्रोग्राम्स में नहीं दिखा। सो दैट ऑल्सो गिव्स देम ऑफ ऑपरेशन कि आपने पढ़ाई भी कर ली कॉलेज के बारे में, इंटरेस्ट भी शो कर लिया थोड़ा सा, और थोड़ा सा मतलब आपका गाइडेंस है आपके दिमाग में। इवन दो आपके दिमाग में गाइडेंस लाइफ में ना हो कि आपने YMBA कुछ, क्योंकि पता है सिर्फ पैसे कमाने इसलिए करना है, बट पूरे इंटरव्यू के लिए आपको एक वो फेक आइडिया बनाना पड़ेगा, इसलिए पीपल जनरली गेट थ्रोन ऑफ देयर गेम अ लॉट। बट दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू, बट उसके साथ आप जितना कंफर्टेबल हो सकते हो आप ट्राई करो, बट ये आपको करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। सो अनिरुद्ध, दिस वाज योर PI एक्सपीरियंस। आपका मैं डिटेल ट्रांसक्रिप्ट डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा लोगों को पढ़ने के लिए। बट व्हाट अबाउट द प्रिपरेशन रोड मैप और द प्रिपरेशन रिसोर्सेज? आपने तैयारी कहाँ से करा एंड हाउ डिड योर डे यूज्ड टू लुक लाइक ड्यूरिंग योर GDPI प्रिपरेशन? तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको अपना GDPI प्रिपरेशन का अगर पूरा रोड मैप बताऊं तो मेरा फर्स्ट PI था SP जैन का, एंड वाज माय बेस्ट कॉल अभी तक जितने, अब तो वी आर इन अप्रैल तो जो भी कॉल्स आने थे SP जैन वाज माय बेस्ट कॉल। तो SP जैन के लिए वी न्यू कि देयर इज अ वैट एंड देयर इज अ ग्रुप इंटरव्यू। तो ग्रुप इंटरव्यू का प्रोसेस इज एंटायरली डिफरेंट, एंड अ शाउट आउट टू हिट बुल्सआई, इट्स एन इंस्टीट्यूट इन चंडीगढ़। वो लोग प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरव्यू प्रिपरेशन सर्विसेज टू एवरीवन हु हैज Tier 1 के कॉलेजेस की कॉल्स, मतलब कैप प्लस एंड आपका ABC, ये SP जैन, MDI अगर इन पे है। फ्री का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ भी मिलेगा, अमेजिंग फैकल्टी। मतलब मेरा जो इंटरव्यू प्रेप का एक्सपीरियंस उन लोग के साथ रहा ना, इवन दो मैं चाहे 5 दिन गया हूँ या 10 दिन गया हूँ, क्या है वो लोग एक दिन का बूट कैंप भी कराते हैं फ्री, इसमें आपको 3 बार तो खाना ही मिल जाता है, आप खाना खाने ही चले जाओ। उसमें आपको कम से कम 10 से 15 लोग अलग अलग लेक्चर्स लेने आते हैं, आपके 2 मॉक इंटरव्यू होते हैं, और आप रोज बुल्सआई के सेंटर जाके मॉक इंटरव्यू दे सकते हो। आई थिंक दे आर इन अदर सिटीज ऑल्सो, मे बी पंजाब साइड या दिल्ली साइड ऑल्सो, एंड इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। एनीवन लुकिंग एट दिस, मेक श्योर कि अगर आपको ये कॉल वॉल आ गया तो आपका अगर PI प्रोसेस कहीं भी चल रहा हो, इनके आप मॉक इंटरव्यू जरूर दे देना, बिकॉज मॉक इंटरव्यूज आर योर मेक इट और ब्रेक इट। पढ़ाई चलती रहती है, आप उस मोमेंट में अपना आंसर कितना फ्रेम कर पाते हो, इवन दो आपसे किसी ने बहुत बैक हैंडेड तरीके से पूछा है कि YMBA, तो आप उसको मोल्ड करके कैसे अपने ही आंसर पे लाओगे या नहीं लाओगे, दैट इज योर मेन प्रैक्टिस फॉर द प्रोसेस। तो मेरी प्रैक्टिस में हिट बुल्सआई के साथ वैट के लिए थोड़ा प्रैक्टिस रहता था। आई वाज लिटिल नॉट कॉन्फिडेंट, आई वुड से, मुझे प्रोसेस थोड़ा पता था कि वैट का कैसे करते हैं, क्या करते हैं। मैंने अपनी उनकी गाइडेंस से भी वेरीफाई करा और अपना आइडिया पहले से बनाया था कि मैं अगर वैट लिखूंगा तो आई वुड राइट इट विद द आइडिया कि शुरू में इंट्रोडक्शन या फिर व्हाट द क्वेश्चन इज आस्क्ड उसको इंट्रोडक्शन में मेंशन करूंगा। देन आई वुड राइट ये मेरी बॉडी है, ये मेरा बॉडी एंड ये सब मैं बोल रहा हूँ वगैरह वगैरह, माय पॉइंटर्स अबाउट दिस, एंड फिर कंक्लूजन टू गिव इट अ नीट एंड टाइडी लुक। एक तो हैंड रिटन है, आई हैव द वर्स्ट हैंड राइटिंग, तो वो आपको एक ये इसकी वजह से एज मिल जाता है, हल्का साफ दिखता है आपका काम, अलग अलग पैराग्राफ्स होते हैं, easier to read for the other person also and give attention, and looks like you have a framed thought process. आप एक फ्लो में चले हो, इंट्रोडक्शन पे फोकस करो, स्ट्रक्चर है, बॉडी पे काम किया, फिर आपने कंक्लूजन दिया। मतलब आई थिंक इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग आई वुड रिकमेंड दिस टू एवरीवन कि आप कभी भी वैट दो, आप ऐसा कर सकते हो। ये जो ABC कॉलेजेस हैं, मतलब आई थिंक ओनली अहमदाबाद, उनका एनालिटिकल राइटिंग टेस्ट होता है, AWT, तो AWT वो डिफरेंट है, उसमें एप्लीकेबल नहीं है, इट्स एंटायरली डिफरेंट।
एंड देन वैट का थोड़ा जब मेरे को स्ट्रक्चर पता चल गया था, उसके बाद तो यही था कि रोज तुम शायद कुछ पढ़ लो, वो कर लो, ये कर लो, ताकि कभी भी कोई भी अगर टॉपिक आया करंट अफेयर रिलेटेड हुआ है, कुछ भी हुआ, तो तुम्हारे पास इन्फो हो। मैंने तो नहीं किया। बाय चांस सेमीकंडक्टर के बारे में आया, मुझे बाय चांस पता था कि पिछले साल टाटा ने सेमीकंडक्टर का कुछ प्लांट खोला था यहाँ पे, वो, और इंडिया का मेक इन इंडिया चलता रहता है। हाँ। चाइना और ताइवान में नंबर ताइवान 1 सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है। बाय चांस पता था, इसको बड़ा साफ सुथरे तरीके से लिखने की कोशिश करके वहां में लिखा है। यहीं पे आप लगाओ, शायद लॉ के बारे में भी, जैसे अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल चल रहा है, मेरे को उसके बारे में बहुत कुछ नहीं पता। अगर वो भी आया होता मैं शायद कुछ भी ना लिख पाता, क्योंकि कुछ नहीं पता था। सो इट्स इंटायरली अ लक दैट आपका जो स्ट्रक्चर है आपको वो डिसाइड करना है कि आपको कैसे आंसर करना है। 20 मिनट में आप बहुत कुछ चीजें नहीं फ्रेम कर सकते हो। सो डिड नॉट पुट इन अ लॉट ऑफ टाइम उसके लिए। तो ग्रुप इंटरव्यूज की तैयारी इज लिटिल डिफरेंट। उसमें ये भी होता है कि आपने अपना इंट्रोडक्शन वगैरह, वाईएमबी वगैरह सब कुछ तैयार कर लिया, बट आपसे वो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि आपके ग्रुप में जो दूसरा बच्चा बैठा था उससे जो पूछा है वहां से कोरिलेट करके आपसे आपका वाईएमबी पूछ लिया जाए। करेक्ट। तो जस्ट हैव अ लिटिल ओपन माइंड, प्रिपेयर योर बेसिक्स फॉर ग्रुप इंटरव्यूज एंड गो फ्रॉम देयर, बिकॉज ग्रुप इंटरव्यूज में जनरली करंट अफेयर ये सब वगैरह नहीं पूछते हैं। यस। एसपी जैन वगैरह जैसे कॉलेजेस में मेरे को सीधा बैठते ही बोला गया था, यू वांट टू नो कि इफ यू आर अ गुड फिट फॉर द कॉलेज और नॉट। तो वहीं से यू कैन अंडरस्टैंड कि आपका करंट अफेयर या ये सब नहीं आएगा, वो आपके बारे में बात करेंगे। Yes. एंड आई डोंट नो, मतलब मैं तो बड़ा ही बुरा लगा जब मेरे को राउंड 1 के बाद राउंड 2 नहीं भेजा। बहुत अच्छा राउंड 1 हुआ था, मे बी कोई बायसेस हैं या नहीं है, आई डोंट नो, कुछ भी होगा, बट एनीवे हार्ड लक। फिर वहां से आपका जो पीआई की प्रिपरेशन आती है, पीआई की प्रिपरेशन में क्या होता है कि आपको, मैंने थोड़ा कॉन्फिडेंस ड्राइव करा फ्रॉम द फैक्ट कि मैंने 3-4 कंपनियां स्विच करी हैं, पीआई दिए हैं, कैसा होता है, क्या होता है, वो होता है। वहां से बस कॉन्फिडेंस ड्राइव किया, वहां से आइडिया नहीं ड्राइव करना, जो मैंने शुरू में गलती करी कि मुझसे कोई भी मेरे काम के बारे में बात करेगा तो हो जाएगी। वो तुमसे सिर्फ काम के बारे में नहीं बात करेंगे, वो तुमसे ये भी बात करेंगे कि कॉलेज में क्यों आना है, एमबीए क्यों करनी है, यहीं से ही क्यों करनी है, ये सब भी बात करेंगे, वो सब भी बात करेंगे। तो हर कॉलेज की तैयारी अलग होती है, हर कॉलेज की स्टडी अलग होती है, हर इंटरव्यू की तैयारी अपनी रहेगी। आपके बेसिक्स वही रहेंगे, आप उन बेसिक्स में कॉलेज स्पेसिफिक कुछ ट्वीक कर सकते हो तो करो। अपना जो इंट्रोडक्शन है अंडर 1 मिनट उसको प्रिपेयर कर सकते हो, करो। एंड सबसे मेन हाईलाइट मेरी पूरी तैयारी की ये थी, अगर आप लोग को अभी भी बात करते लगता हो कि मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ या फिर मैं एक फ्लो में बोलता हूँ अगर कुछ करता हूँ, और उसी में ना तुम बात करते हो टेक ऑफ ऑन अ टेंजेंट, 2-3 जगह से कॉन्वर्सेशन कहीं और घूम के आती है। टॉक स्लो, ट्राई एंड थिंक व्हाइल यू आर टॉकिंग, एंड उसके बाद यू आर एबल टू गिव योर आंसर बेटर। मैंने अभी वो थोड़ा ट्राई करा करने का, तो मे भी अगर आप लोग को डिफरेंस लगे मेरी कम्युनिकेशन में उस तरह से, तो वो इंटरव्यू कम्युनिकेशन जब होती है ना कि आप थोड़ा ऐसे बात कर रहे हो कि हाँ जी, आई परसीव्ड कि मेरे को एसपी जैन इसलिए आना चाहिए क्योंकि आपका ये जो प्रोग्राम है मुझे बहुत अच्छा लगता है, रादर देन कि यार एसपी जैन मेरे को, आई थिंक मेरे को एसपी जैन इसलिए आना चाहिए कि आपका प्रोग्राम इतना अच्छा है, ये है वो है। सामने वाला सुनता ही नहीं। आप मतलब आराम तरीके से बोल रहे हो, उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है सुनने की जगह, क्योंकि आपका वर्ड्स भी उन तक बड़े आराम से जा रहे हैं। और कंसाइज बोल लो, स्लो होके अगर कंसाइज बोल लोगे ना, आई थिंक आपका 60-70% पीआई वहीं डन है। बाकी सब डिपेंड करता है को बोलते हैं क्रिस्प कम्युनिकेशन। एकदम मैंने जीरो कम्युनिकेशन करी है क्रिस्प इस पूरे वीडियो में अभी तक, क्योंकि वांटेड टू गिव यू द मोस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट थिंग्स। आप जब इंटरव्यू दे रहे हो, आप इंट्रोडक्शन में उनको की पॉइंट्स दे रहे हो कि मेरे बारे में ये 3 चीजें हैं, ट्राई एंड कीप इट टू 3। किसी के पास अनफॉर्चुनेटली एक ही होगा कि मेरी एकेडमिक में मैंने 10 CGPA लिया था या कुछ भी, बट अगर कुछ भी हो ट्राई एंड एडिट। अगर कुछ नहीं है और या फिर बहुत ज्यादा है, जैसे मेरे पास 8-10 पॉइंट्स थे, हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ टू हैव दोस, बट आई ट्राइड एंड नैरो डाउन टू 3। आई स्टार्टेड विद माय स्पोर्ट्स का एंगल कि स्पोर्ट्स बहुत खेलता था, स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। फिर आई एडेड कि मैंने एनजीओ के साथ काफी काम करा है, काफी बस यही कि काफी काम करा है, ये नहीं कि काफी अच्छा लगता था या क्या, इनिशिएटिव लिया, काम लिया, ये करा। थर्ड, wrap up एकदम professionally. I've worked with 3 startups in their founding offices. This is generally आजकल के हिसाब से accepted most highlighted point of topic discussion in any interview. तो आपको भी पता है यहाँ से कहाँ बात होने वाली है। तो आप उन 3 टॉपिक्स के बारे में अपने इंट्रोडक्शन या फिर अपना इंटरव्यू का फ्रेमवर्क बनाओ, जिनके बारे में आप 5-5 मिनट के लिए बात कर सकते हो। Most relevant and most मतलब aligned to your strengths. हाँ, अलाइन टू योर स्ट्रेंथ, कि आप उसके बारे में बात भी कर सकते हो और अच्छे से बात कर सकते हो। ये नहीं कि आपने अपनी वीकनेस ही लिख दी उसमें और आप रो रहे हो वहां पे बैठ के 5 मिनट में, हाँ सर मेरे को तो नहीं लगता कि मैं गुड कम्युनिकेटर हूँ या कुछ ऐसा। तो दिस वाज समथिंग दैट shapes your entirety of your interview, shapes the entirety of your interview prep and everything from there forth. आपका जब इंट्रोडक्शन के वो 3 पॉइंट्स नैरो डाउन हो गए, आपको पता है कि इसके आसपास 5-7 क्वेश्चन ही बनते हैं। करेक्ट, 5-7 आप उनका आंसर किस किस तरह से कैसे कैसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो, आप वो कर लो। दैट इज इट इन माई ओपिनियन। पीआई की तैयारी वहीं खत्म हो जाती है। जनरली जो लोअर टीयर के कॉलेजेस होते हैं वो आपका इंटरव्यू 10 से 15 मिनट मैक्सिमम लेते हैं,
मैक्सिमम संबलपुर, सैप, ये सब वो सब मैक्सिमम। आपका अब थोड़ा अपर टियर का कॉलेज है, एसपी जैन है, ये सब है वो सब है, वहां जाएगा आधा घंटा पौना घंटा। तो एक तो पहले बात ही, अब जब थोड़ी ढंग से स्लो करोगे आपको नहीं पता चलेगा 25 मिनट कहाँ गए। एग्जैक्टली। इंट्रोडक्शन वाई एमबीए, इस समय ही आपके 25 मिनट कहीं ना कहीं निकल जाएंगे। फिर वो जो आगे 10-15 मिनट है आपको तो नहीं पता चलेगा कहाँ गए, बट वो थोड़ा आपको फील होगा कि प्रोसेस चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, एक्सेट्रा, जो सम jargon अराउंड इट। तो this is how I think one should go about their interview prep in a concise manner. एग्जैक्टली। इंडिविजुअल वन ऑन वन पीआई के लिए जस्ट ट्राई एंड प्रिपेयर अ इंट्रोडक्शन जिसमें 3 हाइलाइटर्स हो। आप उनको हाइलाइटर्स दो एंड लेट देम टॉक टू यू। उनको पूछने दो उन्हें तुमसे क्या पूछना है। उन 3 हाइलाइटर्स को ऐसे प्रिपेयर करो कि उसके बारे में कुछ भी जो 5-10 क्वेश्चंस बनते हैं वो जो तुमसे पूछे उनको आप जवाब दे सको, एंड यू कैन प्रिपेयर उसके बाद वहां से फॉर योर इंटरव्यूज आगे, कि आगे फिर काउंटर क्वेश्चन क्या हो सकता है या फिर कैसे बात बन सकती है। इट्स इंटायरली अप टू यू कि आप सेल्फ एनालाइज चीज को कैसे कर सकते हो। देयर विल ऑलवेज बी मिसिंग्स कि हाँ इंटरव्यू में उन्होंने कुछ भी पूछ लिया जो आपने नहीं प्रिपेयर किया था, बट आप अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे, 5 सेकंड पॉज लेके भी जवाब दोगे, विच इज अप्रिशिएटेड ऑन द पार्ट ऑफ द इंटरव्यूअर, क्योंकि अदरवाइज लगता है कि आप तो एक तोते की तरह सब रट के आए और आप बोलते जा रहे हो। बिल्कुल। आपको आंसर आता भी हो, 5 सेकंड का पॉज लेके देना, नहीं आता वेल एंड गुड, 5 सेकंड का पॉज लो, अपने थॉट्स को स्ट्रक्चर कर लो। होपफुली पैनिक अगर आप नहीं कर रहे हो, कामली बोल दो कि ये वाली चीज जो आपने प्रिपेयर करी थी उसके साथ वो चीज ऐसे अलाइन होती है, वहां से आपका कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा आपके आंसर में बिल्कुल। कि एटलीस्ट ये चीज मुझे याद थी तो मैं बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ। तो आपके जो 3 पॉइंटर्स इंट्रोडक्शन में जब प्रिपेयर हो गए हैं, आप आसपास के काउंटर क्वेश्चंस प्रिपेयर हो गए हैं, वहां से आपका इंटरव्यू सारा गाइड होता है हमेशा। एंड सेकंड मेन हाईलाइट इंटरव्यू प्रेप की ये रहती है कि आपने सिर्फ और सिर्फ पॉइंटर्स देने अपने हर आंसर में। आपकी इंट्रोडक्शन के बाद इंटरव्यू शायद एक अलग ही टेंजेंट पे चला गया है जिसमें आपने कभी प्रिपेयर नहीं करा है, कुछ भी नहीं सोचा, वो आपसे कुछ पूछ रहे हैं। जैसे मुझसे बिटसॉन्ग के इंटरव्यू में पूछा गया कि व्हाट कीप्स यू अप एट नाइट, तो मुझे था कि हाँ एक कैजुअल इंटरव्यू हो रहा है, थोड़ा ऑनेस्ट ही रहते हैं, क्या है उसको कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं जितना भी मैं अपनी एमबीए से कर सकता हूँ या अपनी वर्क एक्सपीरियंस से कर सकता हूँ। व्हाट कीप्स मी अप एट नाइट, एंड जवाब देते हैं। दिस विल ऑल हैपन इन योर हेड इन लाइक 4 सेकंड्स। वो अभी लग रहा है सोचने में कि हाँ बहुत ज्यादा है, वो करा, उसको मैंने स्ट्रक्चर करने की कोशिश करी जितना भी मैं एक स्ट्रक्चर तरीके से आंसर दे सकता था, कि मैं इनको एक की पॉइंटर्स दूंगा कि यार मेरे को लगता है कि मैंने बहुत जिंदगी में हार्डवर्क करा है, बट किसी चीज का ना मेरे को आउटपुट नहीं मिला, कभी उतना नहीं मिल पाया जितना मुझे चाहिए था, तो मुझे लगता है आई शुड फोकस ऑन स्मार्ट वर्क। तो मैंने इस तरह से आंसर दिया, अभी और कंसाइज कर दिया। वहां पे मैंने भी बकवास करी है कि हाँ ये घुमा फिरा के, इतना इजी नहीं होता आंसर बनाना। बिल्कुल। है कि आप उस मोमेंट में बना पाए, बट आपसे कोई भी सवाल पूछा जाए, वाई एमबीए, वाई नॉट एमबीए का ये कोर्स, वाई वो, गिव देम 2 या 3 लाइंस का आंसर कि आई वांट टू डू एन एमबीए बिकॉज मुझे अपना खुद का स्टार्टअप बनाना है। मेरा ये आंसर रहता था। उसके बाद उनके ऊपर है, उनको मुझसे उस बारे में और बात करनी है करें, नहीं करनी ना करें। मुझे ये नहीं बताना कि मेरे को एमबीए इसलिए करनी है क्योंकि मैंने 2017 में स्टार्टअप पे काम करा, वहां पे ये जॉब रोल में था, प्रमोट हुआ, फिर एक और जगह गया, फिर एक और जगह गया, वहां से सीखा, वो बताया। उस लाइन का 1-2 वर्ड होते हैं कि उससे एक्सपीरियंस लिया और वहां से आगे बढ़ा। 2-3 वर्ड ये होते हैं, तो ऐसे बोलो। अपने आंसर को कंसाइज रखो, टू द पॉइंट रखो, उनको सिर्फ हाइलाइटर्स दो, और इस वजह से आप भी अपनी तैयारी में बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे अगर आप अपने आंसर्स को इस तरह नैरो डाउन कर पाए। बिकॉज यू विल फील यू नो लॉट। करंट अफेयर्स के बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता, आपने पढ़ लिया, आपने कोई अगर नहीं पढ़ा था तो नहीं पढ़ा था, दैट्स इट। एग्जैक्टली। कोई बात नहीं, so that's my entire flow of the preparation and how I went about it. Fantastic, Anirudh. Thank you so much, Anirudh, for coming to the White Collar Engineer and sharing such detailed insights. It was my pleasure hosting you, and all the best for your results. Yeah. Thank you so much, Sir. Thank you. Yeah.